so much pastor صاحب. اگر آج آپ میں ریکویسٹ کروں کہ اگر آپ آج کے کلام کے لیے دعا کر دیں تو that will be very honor for me. Sure. Thank you. زندہ پاک جلالی اور قدوس آسمانی باپ، اس سہانے وقت کے لیے ہم ممنون ہیں جو آپ نے ہمارے جیون میں بخش دیا ہے کہ خداوند ہم آپ کے علم کی خوشبو بن کر ہوا کے دوش پر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ دوسروں تک اس خوشبو کو پہنچانے والے ہو سکیں. ہماری کوئی لیاقت نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ٹوٹے ہوئے حقیر مٹی کے برتن، لیکن شکر ہو کہ اے باپ اپنے پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے ان ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتنوں کی دراڑوں سے اپنے جلال کو آپ ظاہر کرتے ہیں. ہم آپ کا شکر اور آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ نام لے کر ہمیں تاریکی کے قبضے سے آپ نے نکالا اور بلایا، اور یہ وہ بڑی عظیم خدمت ہمارے سپرد کی ہے جو ملائک کو بھی نہیں ملی ہے. آج اس وقت اے خداوند جتنے بھی ہمارے عزیز آپ کے کلام کو سننے کے لیے بےتاب ہیں، ان کی روحیں بھوکی اور پیاسی ہیں، او خداوند منت کرتا ہوں اپنے خادم کو یا اپنی خادمہ کو جس کے وسیلہ سے آپ اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوں، روح القدس کی قدرت سے استعمال کیجئے، اور خداوند آسمانی خیال، الفاظ، جملہ بندی سب کچھ آپ کے روح کی ہدایت سے ہو، تاکہ کوئی بھی آج یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائے بلکہ برکتوں سے جھولیاں بھر کر جانے والے ہو. ہم اپنے علوم کے لیے ممنون تو ہیں، لیکن خداوند ہماری آس اور امید آپ پر ہے، کیونکہ جب پاک روح کی قدرت سے آپ اپنے خیال اور الفاظ دیتے ہیں تو جو ہمارا اپنا علم ہے اس کو آپ اس طور پر یوٹیلائز کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرتے ہیں. جلال اور عزت آپ کے نام کو ملے، اور جب تک خداوند کلام مقدس کھلا رہے ممکن کیجئے کہ جہاں کہیں ہم ہیں آپ کی حضوری ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں محسوس ہو کہ آپ اپنے لوگوں کے بیچ میں ہیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے. Amen. آمین Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Saib. God bless you. And we will definitely make a plan to have you on our live so you can share the word of God according to plan. Thank you very Thank much. you. Thank you. Thank you. جتنے بہن بھائیوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ سب کو پھر سے بہت وارملی ویلکم ہے. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہیلیلویا. آمین. ہلیلویا آپ ہاں آمین جی ابھی ہم آمین سب سے پہلے کلام کی تلاوت کریں گے، تو آپ اپنے مائک کو جو ہے میوٹ کر لیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں. تو آج کا جو کلام ہے یوحنا کی انجیل اس کا 21واں باب ہے. اس پورے 21ویں باب کو ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے آیت با آیت تھوڑی تھوڑی ڈسکشن کریں گے. آج کا میسج بہت ہی خوبصورت ہے، انکریجمنٹ سے بھرا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایسٹر پہ بھی ایک انکریجمنٹ والا میسج دیا تھا کہ کیسے ڈاکو کو بچایا گیا اور وہ فردوس میں گیا. پچھلے سنڈے کا میسج بھی انکریجمنٹ کا تھا کہ خداوند کا پلان ہماری زندگی میں کیا ہے، یسایہ 55 باب سے. آج کا جو میسج ہے بتھیروں کو جو ہے انکریجمنٹ دینے والا ہے. جیسے اس میسج نے مجھے انکریجمنٹ دیا ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ بھی ضرور اس سے حوصلہ افزائی پائیں گے. تو آئیں مل کر پڑھیں گے خداوند کے کلام میں سے یوحنا 21واں باب اور اس کی جو ہے پہلی آیت سے لے کے 25 آیت تک پڑھ لیں گے. ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا: شمعون پطرس اور توما جو توام کہلاتا ہے، اور نتن ایل جو کنانائے گلیل کا تھا، اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے. شمعون پطرس نے ان سے کہا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں. انہوں نے اس سے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں. وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا، اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے. پس یسوع نے ان سے کہا، اے بچوں، تمہارے پاس کچھ
खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती को दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने, जिससे यीशु मसीह मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर के खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था, जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी की जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। आगे आयत पढ़ने से पहले मैं आपको बताती जाऊं कि आज हमारे मैसेज का टॉपिक भी जो है, यीशु तीसरी बार अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ मुर्दों में से जी उठने के बाद। तो इस बात को आपने माइंड में रखना है। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ए शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तो मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे कहा, फिर कहा, ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझको अजीज रखता है? चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ए खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहां चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा, और जहां तू ना चाहेगा वो तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था और जिसने शाम के खाने के वक्त उसके सीने का सहारा लेकर पूछा था कि ए खुदावंद, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, ए खुदावंद, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। बस भाइयों में ये बात मशहूर हो गई कि वो शागिर्द ना मरेगा, लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये ना मरेगा, बल्कि ये कि अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या। ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है, यानी यूहन्ना रसूल, और जिसने इनको लिखा, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और अभी भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि ये किताबें लिखी जाती, उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। आमीन। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत हो। आमीन। I just gonna grab my notes. तो
बड़ा ही खूबसूरत हवाला है। और यकीन जाने जब मैं कल रात 11 बजे तक बैठ के इसको पढ़ रही थी, इस पूरे चैप्टर को, तो मेरा दिल जो है बड़ा ही खुशी से भर गया था कि खुदावंद का कलाम जो है इतना इंकरेजमेंट वाला है। तो हम जो है बात करने वाले हैं यस्सु मसीह का तीसरी दफा शागिर्दों पर जाहिर होना। जैसे आपको पता है कि जब यस्सु मसीह को कब्र में दफनाया गया था और जब वो मुर्दों में से जी उठे थे, तो पहली दफा वो उसी बाग में जहां पर उन्हें दफनाया गया था या उनको रखा गया था, वहां पर वो जो है एक औरत पर जाहिर होते हैं। उसके बाद वो अमाउस की राह पर दो शागिर्दों के ऊपर जाहिर होते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसी संडे में वो जो यीशु मसीह हैं तोमा रसूल की गैर मौजूदगी में जाहिर होते हैं शागिर्दों के दरमियान। हालेलुया। तो यह है पहला विजिट यीशु मसीह का शागिर्दों के दरमियान, जब वो तोमा रसूल के बगैर जो है उधर आए हैं। दूसरा विजिट जो है शागिर्दों के दरमियान, ये हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की या अकेले शख्स की बात नहीं कर रहे। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो वो शागिर्दों पर जाहिर हुए, ठीक है। तो जो दूसरा विजिट है तब हुआ अगले संडे, जो पिछला संडे गुजरा है, जब तोमा रसूल मौजूद था और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे ऑफर की कि देखो मेरे हाथों के सुराख, ठीक है। क्योंकि बाज लोगों ने ये अफवाहें भी उड़ा दी थी कि शायद वो कोई भूत है, कोई रूह है। तो ये बड़ा जरूरी था। बाज औकात बहुत से प्रीचर्स कहते हैं कि तोमा जो था उसने शक किया, लेकिन अगर मैं भी वहां पर होती बीइंग अ ह्यूमन, तो ये जो बात है ये नेचुरल है कि आपके अंदर आ सकती है कि जब कोई बंदा जो है मर के जी उठा है तो आपको कंफर्मेशन करनी जरूरी है। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूं कि तोमा रसूल का हवाला जो है बाइबल में दिया गया है कि खुदावंद ने उसे ऑफर की है, उसे कहा है कि आके मुझे छू लो, देखो मेरे जो है हाथों और पांव के सुराख जो हैं। तो दूसरा जो विजिट था शागिर्दों के दरमियान जो है वो तोमा रसूल की मौजूदगी में हुआ। अब जो तीसरा विजिट हम देख रहे हैं, तीसरी मुलाकात जो है वो है तिब्रियास की झील जो गलील में है। वहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह जो है शागिर्दों के साथ उनका इनकाउंटर हो रहा है और शागिर्दों को अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं जैसे अभी हमने कलाम में पढ़ा है यूहन्ना 21वें बाब में, कि ऐसी बातें हैं जिनसे वाजिया हो रहा है कि यही यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर आप इस स्लाइड को सुन रहे हैं प्लीज कमेंट्स में लिखें हालेलुया, ताकि जितने दूसरे कौम के हालेलुया। बहन भाई जो हैं आ रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं उनको पता चले कि ये क्रिश्चियन ब्रॉड है। यहाँ पर अगर उन्होंने आना है तो सिर्फ खुदावंद के कलाम को ही सुनना है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने आपको 3 वाकयात के बारे में बताया है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है 3 वाकयात में शागिर्दों पर सरेआम जो है जाहिर हुए हैं। और उसमें यह भी कहा जाता है कि यीशु मसीह मुसलसल उन शागिर्दों के साथ नहीं रहे, बल्कि वो चले जाते थे आ जाते थे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यीशु मसीह जो है, यहाँ पर सारे ईमानदार मौजूद हैं, यीशु मसीह जिसने आसमान और जमीन को तहलीक किया है, उसे किसी भी इनविटेशन की जरूरत नहीं। वो जहां चाहता है आ जाता है, वो जहां चाहता है मौजूद हो जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए कलाम में भी लिखा है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूंगा। और मेरा ईमान है कि इस हालेलुया। वक्त जहां कहीं भी हम मौजूद हैं, अपने घरों में है, ड्राइव कर रहे हैं, कहीं पर भी है, खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है, उसकी हजूरी हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। तो हम हालेलुया। देख रहे हैं कि जो हवाले में लिखा है कि वहां पर जो है 7 शागिर्द जो है वहां पर मौजूद हैं तिब्रियास की झील में। सबसे पहले जो उनका लीडर बना हुआ है वो है शमौन पतरस। इसका नाम सबसे पहले आया है और मेरा भी ईमान है कि यही वो लीडर था जो उनको लेके गया है कि चलो आओ तिब्रियास की झील पर मछलियां पकड़ने चलते हैं। तो देखे शागिर्दों के नाम क्या क्या है, शमौन पतरस, और फिर जो तोमा जो तुआम कहलाता है, नतनेल जो कनाने गलील का था, और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। तो ऐसा लग रहा है कि जो लीडर बने हुए पतरस रसूल जो हैं उनको उनकी अच्छी खासी पैरवी कर रहे हैं शागिर्द, ठीक है। 12 में से 11 बचे थे और 11 में से भी जो है 7 जो है मिलकर जो है कश्ती में आ गए हैं और मछलियां पकड़ने के लिए निकले हुए हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो 7 जो है शागिर्द हैं
उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो है दूसरी आयत हमने पढ़ी, तीसरी आयत में शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। ठीक है, तो शमौन पतरस ने कहा है कि मैं जा रहा हूं, तो पीछे जो 6 शागिर्दे इंक्लूडिंग जो शमौन पतरस है वो साथ हैं, तो वो कहते हैं हम भी जो है तेरे साथ चलते हैं। तो ये जो वाकया है आपने ध्यान रखना है, इसको इमेजिन भी करें जब हम बात करें कि ये जो वाकया है यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन के बाद का वाकया है। ठीक है, ये वो हालात हैं जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया, उनको सूली पर चढ़ाया गया, ठीक है, दफनाया गया, और उसके बाद जो है यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो है 2 दफा ऑलरेडी यीशु मसीह ग्रोह पर जाहिर हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम पढ़ रहे हैं कि शागिर्दों ने डिसाइड किया है कि जाकर मछलियां पकड़े। काम तो उनको कुछ और दिया गया था, लेकिन वो किसी और काम में लग गए हैं, और अभी हम देखेंगे कि वो इस काम में क्यों लग गए हैं। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी मोहब्बत थोड़ी सी जो है वो ठंडी पड़ गई है, उनका ध्यान जो है वो भटक चुका है। सेम इसी तरह अगर आपने चर्चिस की कंडीशन देखी होगी, जैसे हमारे अपने चर्च में दे हैड 1 एक्स्ट्रा सर्विस फॉर रेजरेक्शन डे। ईस्टर पे जो है वो 3 सर्विसेज थी। ठीक है, लेकिन जो रेगुलर सर्विसेज है वो 2 टाइम होती है। तो मेरा ईमान है कि आपके चर्चिस में भी जो है, जो कभी चर्च नहीं गए होंगे पूरा साल, वो ईस्टर और क्रिसमस पे जरूर जाते हैं। ऐसी बात है कि नहीं है? अगर है तो कमेंट्स में लिखे यस। तो इसी तरह शागिर्दों के हाल को देखते हैं कि जब यीशु मसीह, ठीक है, मुर्दों में से जी उठे, दे वर वेरी एक्साइटेड। ठीक है, पतरस इवन के भागा जो है दूसरे शागिर्द को काटता हुआ जो है उसने अंदर कब्र के अंदर नजर डाली है, देखा है, और ठीक है वो यीशु मसीह के कफन को उसने पकड़ा है। लेकिन उसकी एक्साइटमेंट थी, वो देखना चाहता था कि आया वाकई यीशु जी उठे हैं। ठीक है, तो वो कंफर्म कर सके इस बात को। तो शागिर्दों की वो एक्साइटमेंट जब यीशु मसीह जी उठा है वो ठंडी हुई नजर आ रही है हमें इस हवाले में, क्योंकि वो जो है अपनी दुनियावी जॉब पर वापस निकल चुके हैं। ऐसा ही हाल हम ईमानदारों का भी है। वक्ती तौर पर जब चर्चिस में हमें अल्टर कॉल दी जाती है तो हम अपने आप को बड़ा गर्म महसूस करते हैं, जैसे कोयला कोयले के साथ लगा रहे तो दहका रहता है। ठीक है, वहां पर रो के चर्चिस में दुआएं करते हैं और मसा को महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस फेलोशिप से बाहर आ जाते हैं तो आप ठंडे पड़ जाते हैं। जैसे ही आप चर्च से दूर होते जाते हैं या ईमानदारों की जमायत से दूर होते जाते हैं, जैसे कि हम सब की फैमिलीज हैं, अगर फैमिली में एक बंदे ने निजात पाई है, दूसरे गैर निजात याफ्ता है, तो ये बड़ा मुश्किल है उन कड़ियों में अपने आप को गरमा के पाकरू के मसा से भरे रखना। लेकिन जो काम हमसे नहीं हो सकता वो पाकरू से हो सकता है, वो खुदावंद की रूह से हो सकता है। तो मेरा ईमान है कि आज अगर आप अकेले महसूस कर रहे हैं स्पिरिचुअली तौर पे, तो खुदावंद आपको ऐसा ग्रो दे, ऐसी जमायत दे, ऐसे बहन भाई दे जो आपको गरमाए रखे मसीह में, जो है जो आपके साथ फेलोशिप करे, ताकि आप मसीह में ठंडे ना पड़े बल्कि मसीह में कायम रहें। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी जैसे पतरस की ही हम बात कर रहे हैं, और पतरस ही उन सब का लीडर है जो उनको लेके जा रहा है तिब्रियास की झील में मछलियां पकड़ने के लिए। आपको याद होगा कि पतरस ही वही शागिर्द था जिसकी सास को तप चढ़ी थी और उसने यीशु से रिक्वेस्ट की थी कि आकर मेरी सास के लिए दुआ करें ताकि वो शिफा पा जाए। तो दैट्स मीन कि अगर पतरस की सास थी तो उसकी वाइफ भी थी, उसकी फैमिली थी। तो जब हमारी फैमिलीज होती हैं तो फैमिलीज की नीड्स भी होती हैं। हो सकता है वही सास जिसने शिफा पाई थी अब वो कह रही हो पतरस को कि तू वेला बैठा की कर रहा है, घर दा गुजारा किंज होएगा। ठीक है, यीशु दे मगर लगे आ रहा, ठीक है, हुण यीशु ते जी उठिया है, हुण तू भी अपने काम ते लग जा। लेकिन हम देख रहे, क्योंकि ये हम अपने से बातें नहीं कर रहे, बाइबल टेस्टिफाई दिस, खुदावंद का पाक कलाम कह रहा है कि 7 शागिर्द जो है झील के किनारे तिब्रियास की झील में मछलियां पकड़ने चले गए हैं। तो फिर जो है हमने सीखा है कि पतरस कवारा नहीं है, पतरस की फैमिली है। जब आपकी फैमिलीज हैं तो फैमिलीज की क्या होती हैं? नीड्स होती हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो हल पर हाथ रख कर
पीछे को देखता है वो खुदावंद के लायक नहीं। हालेलुया। तो देखें खुदावंद ने शागिर्दों को किस काम के लिए बुलाया, लेकिन शागिर्द क्या कर रहे हैं, पीछे मुड़ के चले गए हैं, दोबारा से अपनी प्रीवियसली जॉब्स पे चले गए हैं। मैं भी बाहर काम करती रही हूँ, 3 साल मैंने एक रेस्टोरेंट में काम किया है, तो मेरा तजर्बा कुछ अच्छा नहीं था, इवन दो कि आई मेड अ लॉट्स ऑफ गुड फ्रेंड्स देयर। लेकिन मैंने तौबा कर ली है कि आज के बाद मैंने रेस्टोरेंट में काम नहीं करना। तो देखे ये जो शागिर्द हैं, हालांकि मैं शागिर्दों के लेवल की नहीं, लेकिन मैंने तौबा की है कि मैंने रेस्टोरेंट में काम नहीं करना। लेकिन इन शागिर्दों को देखें कि यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद, ठीक है, उसके मोज़ात को देखने के बावजूद, जिंदगी की बातें सुनने के बावजूद, और सबसे बढ़कर यीशु को खुद अपनी आंखों से देखने के बावजूद, जब वो मुर्दों में से जी उठे हैं, वो दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गए हैं। तो बाज़ औक़ात जैसे पतरस को हम जो है इमेजिन कर सकते हैं कि हो सकता है उसकी फैमिली ने या दूसरे शागिर्दों की फैमिलीज की नीड हो कि अब हम खाएंगे क्या, हो सकता है उनके पास कोई रुपया पैसा ना हो सकता है उनके पास कोई ऐसा सोर्स ना हो जो जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को एक वक्त की रोटी प्रोवाइड कर सके। और आपको पता है कि जब हम अपनी फैमिली से बड़ा प्यार करते हैं, जब फैमिली का कोई बंदा, बच्चा बच्ची परेशान होते हैं, माँ बाप खुद भूखे रह लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जैसे कैसे हो के, चाहे भीख मांग के भी अगर करना पड़े तो वो क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम उनकी जो है जिंदगी को समझ सकते हैं कि इंसान होने के नाते उनकी फैमिलीज हैं। लेकिन यीशु मसीह जो खुद कायनात को तहलीक करने वाला है, और जिसने जो है इतने इतने बड़े मोजज़े उनके सामने किए हैं, उसको देखते हुए भी कैसे किसी का ईमान डावाडोल हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन ये भी हमारे लिए सीखने की बात है कि शागिर्द भी आम से ही लोग थे, लेकिन वो चुने गए थे, वो दोबारा से माफ किए गए थे, उनको दोबारा से उनकी मिनिस्ट्री की याद दहानी करवाई गई थी। और आज देखें कि उन्हीं शागिर्दों ही की वजह से पूरी दुनिया में खुदावंद का कलाम फैल चुका है। तो कभी भी अपने आप को कम ना समझें कि मेरे पास एजुकेशन नहीं, या मेरा बैकग्राउंड बड़ा गरीब है, या मेरे ताल्लुकात ऊंचे लोगों से नहीं। आप इंडिविजुअल जो हैं, आप अकेले जो है खुदावंद के लिए बहुत अहमियत के हामिल है। हालेलुया। क्योंकि जब कलाम में लिखा है कि जब कोई एक रूह बचती है तो आसमान पर हजारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। ठीक है, तो एक रूह के बचने से हजारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं, तो इससे बढ़कर ऑनर और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ा प्रिविलेज ये है कि यीशु मसीह आपसे बड़ा प्यार करते हैं। उन्होंने आप है के लिए जो है अपने खून को बहाया है, अपनी जान का नजराना पेश किया है, ताकि आपको गुनाहों की माफी मिल सके। हालेलुया, हालेलुया। टाइप करते जाए, सॉरी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं चर्च में कलाम सुना रही हूँ, दैट्स व्हाई आई कीप रिपीटिंग हालेलुया, हालेलुया। तो अभी जो है हम चौथी आयत में देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा है। वहां पे लिखा है, और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। देखें, यीशु मसीह जहां चाहते हैं वहां पर मौजूद हो जाते हैं। लेकिन ये जो 5वीं वर्ष है वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने उनसे पूछा है कि ए बच्चों तुम्हारे लिए खाने को कुछ है? तो उन्होंने कहा है नहीं। तो ये जो बात है ये 2 तरह की हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यीशु मसीह जो है एक रूह की शक्ल में, रूह के भेस में वो जिंदा नहीं हुए, वो दोबारा से इंसानी जिस्म लेकर जिंदा हुए। इसी वजह से उन्होंने तोमा को क्या कहा कि मेरे हाथों के सुराख, ठीक है, टच करो, कंफर्मेशन करो। ठीक है, तो इस बात को हम 2 पहलू से ले सकते हैं। पहले नंबर पर हो सकता है कि यीशु मसीह को भूख लगी हो, ये सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि वो इंसानी बदन रखे आए हैं। दूसरे नंबर पर वो शागिर्दों से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मेरे से ले लो,
मैं तुम्हें खाने को दूंगा, क्योंकि मैं तहलीक करने वाला हूं। जैसे पास्ट में पिछले मोजज़ात में क्रूसिफिकेशन से पहले खुदावंद ने मोजज़ात किए, इतने मोजज़ात किए कि हजारों की तादाद लोग जो है खा पी रहे हैं, और टोकरों के टोकरे जो हैं वो रोटियां बच गई हैं। तो आज भी वही खुदावंद उनके दरमियान था, लेकिन चौथी आयत में लिखा है कि वो उसको पहचान ना पाए। हालेलुया। तो फिर हम अगली आयत में भी देखते हैं, बड़ा ही खूबसूरत ये वाक्य। छठी आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा कश्ती को दाहिनी तरफ जाल डालो। किसी भाई का माइक ऑन है, प्लीज आप म्यूट कर लें ताकि कलाम में डिस्टरबेंस ना हो। तो वहां पर लिखा है, उसने उनसे कहा कश्ती को दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके, इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, ये जो शागिर्द यीशु से मोहब्बत रखने वाला है वो है यूहन्ना, ठीक है, पतरस से कहा ये तो खुदावंद है। पहचाना भी किसने है? यूहन्ना ने पहचाना है, और उसने पतरस को बताया कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर के खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था, और झील में कूद पड़ा। अब मैं इन दो आयात की वजाहत आपको करूंगी कि पहले तो यस्सु मसीह ने उनको कहा है कि जाल जो है दाहिनी तरफ डालो। तो अगर आप पहले वाक्य को भी देखें, जब शागिर्दों का चुनाव हुआ था, जो है पतरस, इंद्रियास, यकूबी, यूहन्ना का, तो तब के दौर में भी यस्सु मसीह ने उनको कहा था कि जाल इस तरफ डालो, तो जाल उनके जो थे मछलियों से भर गए थे। तो आज मैं इसी वाक्य से उन बहन भाइयों की हौसला अफजाई करूंगी जो कोई भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसे की इन्वेस्टमेंट है, मार्केट का बिजनेस है, कुछ भी आप कर लो, आपकी अपनी मेहनत से कुछ नहीं हो सकता। जब तक खुदावंद यीशु मसीह आपके बिजनेस को ब्लेस करे, आपको बरकत नहीं मिल सकती। तो कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी छोटा सा भी काम कर रहे हैं, आज से ही खुदावंद को इन्वॉल्व करना शुरू करें और खुदावंद से बरकत को लेना शुरू करें, क्योंकि हम बरकत के फर्जंद हैं। आज चर्च में भी बड़ा खूबसूरत मैसेज था कि जब खुदा ने आदम और हव्वा को बनाया है, तो उसको आयत में लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि फलो बढ़ो, लेकिन उससे पहले खुदावंद ने उनको बरकत दी है। तो आज मेरे बहन भाइयों, आप मेरे बड़े प्यारे बहन भाइयों, मैं आपकी हौसला अफजाई ही करूंगी, और मेरे पास हमेशा आपके लिए हौसला अफजाई का ही पैगाम है, क्योंकि ये जो वर्ड ऑफ गॉड है, खुदावंद का जिंदा कलाम है, ये हौसला अफजाई से भरा हुआ है। ये वन ऑफ द बेस्ट encouraging book we have to keep going in life। तो इतनी खूबसूरत बात है कि जैसे खुदा ने शागिर्दों को प्रोवाइड किया है, शागिर्दों को जाल डालने की भी जरूरत नहीं थी। मेरा ईमान है कि अगर यीशु कह ही देते कि सारी मछलियों इस तरफ आ जाओ, इन शागिर्दों की कश्ती को भर दो, तो उन्होंने हुक्म को मान लेना था। लेकिन यीशु ने कहा कि इन जाल को इस तरफ दाहिनी तरफ डालो, तो जाल इतना भर गया कि उनसे खींचा भी नहीं था जा रहा। हालेलुया। तो मैं दुआ गो भी हूं, मेरा ईमान है कि खुदावंद आपकी जॉब को, आपके कारोबार को, आपके बिजनेस को, या किसी भी चीज को आप हाथ लगाएं तो खुदावंद उसको मल्टीप्लाई करे, बरकत से भर दे। हालेलुया। तो हालेलुया, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। 7वीं आयत में लिखा है कि पतरस जो है क्योंकि वो नंगा था और झील में कूद पड़ा। अब ये ना समझें कि पतरस जो है जैसे हमारे बच्चे पानी के टब में नंगे नहा रहे होते हैं, उस तरह का था। तब के दौर में जो है टखनों से ऊपर तक जो है, अगर आपकी टांगे नंगी हैं और आपके जिस्म का ऊपरी हिस्सा नंगा है, तो उसको नंगा ही समझा जाता था या कहा जाता था। आज के दौर में हम उसे कह सकते हैं कि पतरस ने बेदिंग सूट डाला हुआ था या स्विमिंग कॉस्ट्यूम उसने पहना हुआ था। ठीक है, तो इस आयत की भी आपने जो है क्लैरिफिकेशन देनी है कि नंगा होने से मुराद ये है कि उन्होंने स्विमिंग जो है कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, उनकी टांगे और ऊपर का हिस्सा ही जो है वो नंगा था। ठीक है, तो उसके बाद अगली आयत देखेंगे। 9वीं आयत में लिखा है, जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, ये मछलियां जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो पहले 9वीं आयत को मैं आपके सामने खोलूंगी। सुबह का मौसम है, गरम गरम आग है, ठंडे ठंडे पानी से ये शागिर्द निकले हैं और क्या देख रहे हैं कि कोई उनके लिए वहां पर बैठा है, इंतजार कर रहा है और आग जलाकर बैठा हुआ है। पतरस की तरफ फोकस करते हैं। पतरस को कुछ ना कुछ वाकया याद आया होगा
کہ جب یسوع مسیح کو پکڑا گیا تھا تو تب بھی ایک آگ دہک رہی تھی اور اس نے یسوع کا انکار کر دیا تھا. دل میں ملال اس کے ضرور آیا ہوگا. ہم انسان ہیں، بعض اوقات ہم اپنے ایکسپریشن کو یا فیلنگز کو شیئر نہیں کرتے، لیکن ہمارے دل میں ملال ضرور ہوتا ہے. ہم کسی کو نہ بتائیں لیکن دل میں ملال ہوتا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ پطرس کے دل میں بھی ملال ضرور آیا ہوگا، کیونکہ ابھی جو ہے وہ پہچان گیا ہے کہ یہ خداوند ہی ہے. اسی وجہ سے اس نے جھیل میں چھلانگ لگائی ہے کیونکہ وہ ننگا تھا. تو دیکھیں کہ ابھی بھی وہی آگ دہک رہی ہے. یسوع مسیح نے آگ جلائی ہے ان کے لیے، اور اسی پشیمانی میں جو ہے پطرس آگے بڑھا ہے. لیکن یسوع مسیح ان کو کیا کہہ رہے ہیں 10ویں آیت میں کہ جو مچھلیاں انہوں نے لائی ہیں ان کو پکڑ کر یسوع کے پاس لائیں. شمعون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا. تو یہ بھی آپ کے لیے ایک حوصلہ افزائی بات کروں گی کہ چاہے جتنا مرضی آپ کا بزنس بلیس ہو جائے، برکت آ جائے، آپ کی تھیلی کو سوراخ نہیں ہوگا. آج ایمان کے ساتھ کہیں کہ خداوند میری تھیلی کو سوراخ نہ ہو، میرے محنت کی کمائی ضائع نہ ہو. خداوند آج تیرے دہنے ہاتھ کی برکت میرے گھر کی کمائی پہ، جتنے بھی گھر کے افراد آپ کی فیملی میں ورک کر رہے ہیں ان پر برکت رہے، اور ابلیس آپ کا پیسہ چرانے نہ پائے. آمین آمین. خداوند آپ کو برکت دے. آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں، خداوند کے نام کو جلال ملے. تو دیکھیں ایک ایک آیت بول رہی ہے، اور ایک ایک آیت جو ہے حوصلہ افزائی والی ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پطرس کو ہو سکتا ہے ملامت ہوئی ہو، لیکن وہ پھر بھی جو ہے تھوڑی سی جرت کر کر کیا کر رہا ہے، یسوع مسیح کے پاس گیا ہے، اور بڑی اس نے جوش سے جو ہے 153 مچھلیوں کا جال جو بھرا ہوا ہے، جوش میں ہی آتے ہوئے جو ہے نا وہ کھینچ کے لے آیا ہے. اب مجھے نہیں پتا، میں تو کبھی 10 پاؤنڈ سے زیادہ وزن نہیں اٹھا پاتی، تو مجھے نہیں پتا کہ 153 مچھلیاں جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں وہ اتنی ہیوی ہوں گی، اور کیسے اس نے بڑی مردانگی کے ساتھ جب آپ جوش میں آتے ہیں نا تو آپ بڑے سے بڑا کام کر جاتے ہیں. تو 153 مچھلیوں کو اس نے ایسے اٹھایا ہے کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ جال پھٹا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب اگر سٹرگل ہوتی مچھلیوں کو پکڑنے کے تو جال پھٹ بھی سکتا تھا، کیونکہ پھر آپ ایک جیسے وہ کرتے ہیں کشتی ہو جاتی ہے، کہیں سے جال کو پکڑتے ہیں کہیں سے جال کو پکڑتے ہیں، اور اس میں پھٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں پطرس کے اندر اتنا جوش تھا، ایکسائٹمنٹ سے بھر گیا کہ یسوع مسیح نے اسے کہا ہے کہ کچھ مچھلیاں لے کے آؤ، اور وہ 153 مچھلیاں جو ہے یسوع کے سامنے لا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے 12ویں آیت میں یسوع نے ان سے کہا آؤ کھانا کھا لو. شاگردوں میں سے کسی کی جرت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، ایون دو کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ یسوع ہی ہے. جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ جس شاگرد سے یسوع پیار کرتا تھا وہ پہچان گیا کہ یہ خداوند ہی ہے، اور جو ہے اس نے پطرس کو بتایا ہے، اور پطرس نے پانی میں چھلانگ لگائی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو پتا ہے کہ یہ خداوند ہے، لیکن جرت کسی کی نہیں ہے کہ وہ یسوع سے پوچھ سکتے کہ تو کون ہے. جرت اس لیے نہیں کہ سارے ملامت سے بھر گئے ہیں کہ یسوع نے تو ہمیں کچھ اور کام دیا ہے، اور ہم یہاں پر مچھلیاں پکڑنے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے کسی کی چوری پکڑی جاتی ہے، ملال دل میں آ جاتا ہے کہ خداوند نے تو مجھے جو ہے بلایا ہے اپنی خدمت کے لیے، خداوند نے تو مجھے بلایا ہے بشارت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہمارے چرچز میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، پاکستانی چرچز میں یہ اسپیشل ہے کہ لوگ خداوند کا اقرار کر کے برگشتہ ہو جاتے ہیں، پاکرو لے کے برگشتہ ہو جاتے ہیں، وعدے کر کے، ٹھیک ہے، بائبل پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں ایک چرچ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلوں گی. تو لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کا حال جو پہلے سے بھی برا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک بدرون میں سے نکلی ہوتی ہے، پھر ہزاروں کی جو گروہ ان میں داخل ہو جاتے ہیں. تو ایسے بھی ایماندار میں نے دیکھے ہیں جو راہ بٹک جاتے ہیں. لیکن ہمیں حوصلہ افزا بات یہ ملتی ہے، جیسے پچھلے سنڈے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر خدا کا بندہ 70 مرتبہ بھی گرے تو کیا ہے کہ خداوند اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ جو ہے، ہمیشہ آج آپ اس بات کو پلے باندھ لیں کہ ہمیشہ
آپ نے لوگوں کو انویٹیشن دینا ہے کہ یسوع کے پاس واپس آ جائیں، چاہے وہ بستر مرگ پر ہیں، مر بھی رہے ہیں، مرنے سے پہلے بھی اگر توبہ ہو جاتی ہے تو آپ نے ان سے کروا کے چھوڑنی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم بار بار اس واقعے کو پڑھتے ہیں کہ جو ڈاکو تھا یسوع کے ساتھ سلیب پر لٹکایا تھا، وہ بھی جو ہے مرتے مرتے اس نے یسوع کو قبول کر لیا اور فردوس میں داخل ہو گیا۔ تو کوئی بھی گھڑی جو ہے نجات کی گھڑی ہو سکتی ہے، لیکن ضرور یہ ہے کہ آپ نے انویٹیشن دیتے رہنا ہے۔ آپ نے جیسے اناجیل میں لکھا ہے کہ وہ جو تھی بیوہ، وہ اپنا انصاف مانگتی رہی ہے، قاضی کا در کھٹکھٹاتی رہی ہے۔ اسی طرح آج آپ نے اپنی فیملیوں کے لیے خداوند کا در کھٹکھٹانا ہے کہ آپ کے خاندان کا کوئی بھی شخص پیچھے نہ رہ جائے، بلکہ سارے کے سارے آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، خداوند کے نام کو جلال ملے۔ تو ان آیات کو سکپ کریں گے تو دیکھیں گے 15ویں آیت بڑی مزے کی آیت ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے کسی کو افینس بھی ہو کیونکہ کلام وہی ہے جب تک آپ کے دل پر چوٹ نہ لگے۔ اگر چوٹ لگ رہی ہے تو آپ نے اسی گھڑی اقرار کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے اور خداوند سے دوبارہ اپنے تعلق کو بحال کرنا ہے۔ تو 15ویں آیت میں دیکھیں گے، وہاں پر لکھا ہے، اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پترس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو اس سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ خداوند پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ یسوع مسیح جس محبت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ محبت ہے اگاپے لو، جس کو انکنڈیشنل لو کہتے ہیں، جس کو غیر فانی لفانی، جو کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو ہمیشہ جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ یسوع مسیح اس محبت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ پترس کیا جواب دے رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ خداوند انکنڈیشنل لو کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ایسا لو، ایسی محبت جو ہر ایک انسانی رشتے سے اوپر ہے، جو سب سے اوپر ہے، جس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، وہ مسلسل جاری رہنے والی محبت ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن پترس کہہ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں، ابھی بھی اپنی محبت کا اقرار نہیں کر رہا۔ اور ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ کیونکہ پہلے اس نے اقرار کیا تھا کہ خداوند میں تو تیرے لیے مرنے کو بھی تیار ہوں، بڑا اس نے دعویٰ کیا تھا، اور وہ اس دعوے میں کیا ہو گیا تھا؟ فیل ہو گیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ پترس کے دل میں وہی ملامت ابھی امڑ رہی ہے ملامت جو ہے کہ میں نے تو پہلے بھی دعویٰ کیا تھا اور ابھی میں نہیں کہوں گا، کہیں میں پھر سے ناکام نہ ہو جاؤں۔ تو خداوند اس سے کہہ رہے اگاپے لو کے بارے میں محبت، اور پترس کیا کہہ رہا ہے؟ میں عزیز رکھتا ہوں۔ پھر دوبارہ سے خداوند اس نے اس سے کہا تو میرے بڑے چڑھا، پھر بھی خداوند اس سے کہہ رہے میرے بڑے چڑھا۔ خداوند نے اس کو آدم گیر بنا دیا ہوا تھا، جب اس کا چناؤ ہوا تھا تب بھی خداوند نے اسے کہا تھا کہ میں تجھے آدم گیر بناؤں گا۔ تو ابھی بھی جب جو ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد بھی اب خداوند پھر سے کہہ رہا ہے کہ میرے بڑے چرا، ہیلیلویا۔ تو پھر دوبارہ خداوند اس سے پھر کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اگین خداوند نے کیا کیا ہے؟ محبت کے بارے میں پوچھا ہے، اور پھر سے وہ کیا کر رہا ہے؟ عزیز ہونے کی بات کر رہا ہے۔ عزیز ہونے میں اور محبوب ہونے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کمنٹس میں ٹائپ کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ سن رہے ہیں۔ ہیلیلویا۔ تو 17ویں آیت میں لکھا ہے، تیسری بار جو ہے اس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اب یسوع نے بھی پینتڑا بدل دیا ہے۔ یسوع نے پہلی 2 دفعہ آیات میں پوچھا کہ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، لیکن تیسری آیت میں یسوع کہہ رہے ہیں، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ عزیز، یہ جو وہ والا عزیز ہے جب یسوع مسیح جو 2 دوست ہوتے ہیں وہ آپس میں محبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ محبت ایسی محبت ہے کہ تو مجھ سے محبت کرے گا تو میں تجھ سے محبت کروں گا، اگر تو میرے سے بات چیت نہیں کرے گا تو یہ محبت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو اب جو ہے یسوع مسیح اس محبت کے بارے میں بات کر رہے، انکنڈیشنل لو کے بارے میں بات نہیں کر رہے، چونکہ اس نے
तीसरी बार उसे कहा था तू मुझे अजीज रखता है। इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर, दिलगीर का मतलब है कि बड़ा जो है जो है दुखी होके उसका दिल जो है इमोशनल से भर गया है, होकर उसे कहा ए खुदावन तू तो सब कुछ जानता है। पतरस को पता है कि खुदावंद जो है सब कुछ जानता है, लेकिन वो अपने मुंह से इकरार नहीं कर रहा कि खुदावंद मैं तुझसे अनकंडीशनल लव करता हूँ या गैर फानी मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जब उसने कहा कि तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। अभी भी पतरस यही कह रहा है कि तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा। तो अब जो है ये कन्फर्मेशन हो गई है पतरस की खिदमत की। 3 दफा जो है, 3 दफा, 4 दफा नहीं, 3 दफा जो है पतरस को खुदावंद ने कहा है कि तू मेरी भेड़ें चरा। हालेलुया। तो ये जो है बकायदा जो है अब उसकी मिनिस्ट्री का आगाज हो चुका है। पतरस की मिनिस्ट्री का आगाज हमें यूहन्ना 21वें बाब में मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उससे पहले तो वो डामाडोल हुए हैं, उससे तो पहले वो अपने दुनियावी कारोबार पर वापस निकल गए हैं, दोबारा से अपनी फैमिलीज के साथ मिल गए हैं, दोबारा से जो है वही पुरानी जिंदगी उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ इस बात में हम देख रहे हैं कि कैसे खुदावंद ने दोबारा से उन्हें बहाल किया है। हालेलुया। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगली आयत में 18वीं आयत में पतरस की मौत के बारे में भी बता दिया गया है। खुदावंद ना सिर्फ आपकी जिंदगी से वाकिफ है, खुदावंद आपके मौत के वक्त से भी वाकिफ है। हालेलुया। आए पढ़ेंगे 18वीं आयत में, वहां पे लिखा है मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो तू आप ही कमर बांधता था और जहां चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा मेरे पीछे हो ले। तो देखें, आज से ही दुआ करना शुरू करें। हम अपनी जिंदगियों की बड़ी लंबी लंबी दुआ करते हैं, खुदा हमें अच्छी सेहत दे, लंबी जिंदगी अता कर, ताकि जो काम हमारी जिंदगी में रह चुके वो भी हम करें। लेकिन आज से ही इन आयात से हम सीख रहे हैं कि आज से ही खुदावंद के हुजूर दुआ करना शुरू करें कि खुदावंद ना सिर्फ हमारी जिंदगी से, हमारी मौत से भी तुझे जलाल मिले। हालेलुया। हमें ऐसी मौत है कि जिससे तुझे जलाल मिले। मरे तो प्राइड के साथ मरे कि हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए हैं और खुदावंद यीशु मसीह के लिए ही मरेंगे। जब मैं मौत के बारे में सोचती हूँ तो मैं एक्साइटमेंट से भर, क्योंकि मैंने मौत को बहुत ही करीब से देखा, बहुत दफा देखा है। तो अभी तो जब मौत का कभी होता है तो मुझे पता है दुनिया में हम एक मुसाफिराना जिंदगी, मौत के बाद हम हमेशा यीशु उसी के साथ होंगे, उसकी बादशाहत में होंगे, मिलजुल कर आसमान के बादशाह के सामने प्रस्तिश कर रहे होंगे। हालेलुया। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी के एक इंजील ही बाइबल मुकद्दस ही ऐसा कलाम है जो आपको इतनी हौसला अफजाई देता है, और ये हौसला अफजाई आसमान की बादशाह में दुनियावी चीजों की कोई वक़्त नहीं है। वहां पर कोई भी दुनियावी चीज नहीं होगी, वहां पर सिर्फ रूहानियत होगी। सिर्फ आप खुदावंद की हजूरी में प्रस्तिश करेंगे और एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे खुदावंद के हजूर में, ठीक है। तो अगर दुनिया में रहते हुए भी जैसे पतरस का हम देख रहे हैं कि खुदावंद का चुनिंदा शागिर्द है और किन किन हालात से वो गुजर गया है, यीशु मसीह का इनकार भी इसने किया है, दोबारा से अपने कारोबारी जिंदगी में लग गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी खुदावंद ने उसको उठा खड़ा किया है, बहाल किया है। और अगली आयत जो है वो भी बड़ी गौर से सुनने वाली। ये पूरा चैप्टर बड़ा मजे का था, पूरे इसको जो है कंसंट्रेट करके सुनने और समझने वाला था। अगली आयत भी बड़ी मजे की, और आज बथेरे बहन भाई इसका भी शिकार होते हैं। तो देखते हैं कि देखें खुदा ने उसको इतना बड़ा ओहदा दे दिया कि मेरी भेड़ें चढ़ा, इतना बड़ा ओहदा दे दिया है। और आपको पता भी है कि पतरस की खिदमत जो है बाइबल मुकद्दस में बहुत बड़ी है। इतना बड़ा ओहदा मिलने के बावजूद भी देखें कि अगली आयत में ये बंदा क्या कर रहा है। मिलकर पढ़ते हैं 20 आयत में, पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिसे यीशु मोहब्बत करता था, यूहन्ना रसूल की बात हो रही है, और जिसने शाम के खाने के वक्त उसके सीना का सहारा लेकर पूछा था कि खुदावंद
मेरा पकड़वाने वाला कौन है। पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, ए खुदावंद, इसका क्या हो। एक खुशी आती है कि एक बंदे को जब ट्रॉफी मिल गई है तो वो किसी दूसरे के मेडल की तरफ क्यों ध्यान दे रहा है। एक बंदे को जब खुदावन ने इतना ऊंचा मुकाम दे दिया है तो वो जो है अपने साथ वाले साथी के बारे में क्यों सोच रहा है कि उसको खुदावंद क्या देने वाला है। आपको अपनी बरकत पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी के बारे में ना सोचे कि इसके पास ज्यादा है या इसके पास कम है। हो सकता है पतरस कश्मकश में पड़ गया हो कि मैंने तो 3 दफा यीशु मसीह का इनकार किया था, तो उसके बावजूद मुझे ये ओहदा मिल गया है। खुदावंद कह रहा है कि मेरी भेड़ें चरा। तो ये जो शख्स है यूहन्ना रसूल जो है, जो यीशु मसीह का सबसे प्यारा शागिर्द है, बार बार 2-3 दफा इस हवाले में इसका जिक्र आ गया कि यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द या जिससे यीशु मसीह रखते थे। तो ये शागिर्द तो यीशु मसीह की आखिरी टाइम तक उनकी सलीब खड़ा रहा है। फिर यीशु मसीह इसी शागिर्द को जो है अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंपी है। तो हो सकता है कि इस शागिर्द को ज्यादा मिल गया, ज्यादा हो कि रसूल को मिल जाए। लेकिन मेरे बहन भाई, आज आपकी हौसला अफजाई के लिए यही कहूंगी, कभी भी ये ना सोच इसकी छोटी है। आप सबको खुदावंद ने डिफरेंट बरकतें दी हैं, डिफरेंट खिदमत, और सब यीशु मसीह के लहू बचाए गए हैं। खुदावंद को आप जानते हैं, आपने नजात को हासिल किया है, तो उसका एक मकसद है, और ये आपको बदन जान से यीशु मसीह को जलाल मिले। हालेलुया, कमेंट हालेलुया टाइप आके खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। तो फिर आगे उसे जवाब देते हैं। यीशु ने उसे कहा कि अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे, तुझे क्या। तू था कि यीशु मसीह चाहते ये शख्स जिंदा रहेगा फॉरएवर, पर खुद बताने के लिए कह रहा है कि अगर मैं चाहूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तुझे इससे क्या। ठीक है, तुझे इससे क्या। तू मामले में टांग अड़ाने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। 21वीं आयत को भी हमने पढ़ लिया है, 22 को भी पढ़ा है। तो जो भी जिम्मेदारी खुदावंद ने आपको दी है उसको आज आपने पूरी ईमानदारी से करना है। सबसे पहले आपकी, कहते हैं कि जो फैमिली है वो फर्स्ट मिनिस्ट्री है। ठीक है, जैसे मैंने पतरस की सास का हवाला आपको दिया है। पतरस अपनी सास से बड़ा प्यार करता था, और करना भी चाहिए। मेरे अपने हस्बैंड जो है मेरी माँ से बड़ा प्यार करते हैं। ठीक है, जो रिश्ते खुदावन ने आपको दिए उन सब रिश्तों से प्यार करना चाहिए। और पतरस का अपनी सास के साथ प्यार ही था, तभी उसने यीशु मसीह से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे घर चलें और मेरी सास के लिए दुआ करें, क्योंकि उनको तप चढ़ी हुई थी, बुखार चढ़ा हुआ था, और खुदावंद के दुआ करने से वो शिफा पा गई। तो आज अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, अजीजों कारब के लिए जरूर दुआएं, लेकिन यीशु को न भूलें। यीशु का दामन थामे रखें, यीशु के साथ चलते रहें, यीशु को ही अपना अनकंडीशनल लव दें। लाफानी मोहब्बत जो है यीशु से पहले करें, बाद में किसी और के साथ करें। हालेलुया। तो पहला पतरस 5वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है। अब ये वही पतरस है जिसको खुदा ने कहा है कि मेरी भेड़ें चढ़ा, वो अपने हाथ में लिखता है, पस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। तो अभी वही पतरस जो इस सारे होके गुजरा है, बड़ी उसमत है, उसने हमें टिप दे दी है कि खुदावंद अपने वक्त बुलंद तब करेगा जब हम उसके नीचे। और उतनी को मैं में कहूंगी के साथ के साथ हाथ के नीचे जब आप रहेंगे तो खुदावंद आपको वक्त
पर सर बुलाया है। हालेलुया। मैं आपकी एक और आप ये आसान दो शागिर्दों यीशु मसीह को महसूस करने के बाद वो शागिर्द थे, बढ़ गए थे और वो दोबारा अपनी दूसरी जॉब्स पर चले गए थे वापस। लेकिन देख रहे हैं कि में यीशु मसीह जाहिर हुए हैं, यीशु मसीह ने उन्हें बहाल किया है और उनके उनको वापस दिए, याद आने करवाइए कि वो किस काम के लिए चुने गए थे। हालेलुया। तो आज अगर आपने को जो है आज अगर आपने यीशु मसीह का को दावत दी हूं, ये दावतें सरे अगर आपने कर दिया वापस आ तो अपनी बाहें आपको वेलकम कर रहा है। अगर मुस्तरफ बेटा जो है माफ किया जा सकता है, उसका बाप उस खुले बाहों के साथ बाल उसका है, तो हमारा आसमानी बाप भी जिसकी आप तहलीक है वो आप दोबारा से चाहते हैं और आपको बरकत चाहता है। हालेलुया। तो खुदावंद के हाथ के नीचे, कवि हाथ के नीचे फरोतनी के आ जाएं और खुदावंद आपको वक्त मुकर्रा पर करे। खुदावंद इस काम के वसीला से आपको और आपके खानदानों को बरकत दे। इस पर जितने बहन भाइयों ने हमें ज्वाइन किया था उन सबको बरकत दे। आप सब बड़े प्यारे बहन भाई हैं और आप सबकी हौसला अफजाई के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा